Hello everyone and welcome to the last session on chapter 2 of Science 2, which is life processes in living organisms. As we said in this chapter, what are we going to study? We are studying about two different topics. The first one was energy production in living organisms and the second is talking about cell division. We have completed the first one and right now we are working on the second topic, which is cell division. Under this topic we have already covered that cells are divided into two categories on the basis of number of chromosomes. They are, the first is haploid cells जिनमें n number of chromosomes होते हैं, and the second is called diploid cells जिसमें 2n number of chromosomes होते हैं. Some of the examples of haploid cells are germ cells जैसे कि sperm and eggs. In humans, sperms and eggs have only 23 chromosomes, whereas example of diploid cells in humans are somatic cells and stem cells जिसमें 2 into 23 which is 46 chromosomes होते हैं. We then studied that both these type of cells have to undergo cell division and there are two different ways by which cell division happens in them. पहले का नाम है माइटोसिस जो डिप्लॉइड सेल्स में होता है, जो सोमैटिक सेल्स में होता है. दूसरे का नाम है मियोसिस जो जर्म सेल्स में होता है या हैप्लॉइड सेल्स में होता है. In the last session we already studied about mitosis, in which we said that for the growth of different cells in the body, mitosis is necessary. Under that we have the first process which is called karyokinesis या nuclear division. इसके अंदर 4 phases होते हैं. The first is prophase in which decondensation of the nucleus happens. The second is metaphase जिसमें सारे chromosomes एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं. The next is anaphase जिसमें chromosomes खींच के opposite poles में जाना शुरू हो जाते हैं. And the last is telophase in which two different chromosome pairs are formed and from there cytoplasm division starts and that is called cytokinesis. So this was about mitosis. Moving ahead, the objective that we have for today is we will be able to understand the process of meiosis. हमने माइटोसिस पूरा पढ़ लिया. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि मियोसिस कैसे होता है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस कैसे होता है, मियोसिस क्यों ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन. हमारे जो स्पर्म एंड एग सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उनका डिवीजन मियोसिस में होता है. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मियोसिस इज़ दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कि हर इंडिविजुअल देखने में अलग दिखता है. Even you look different from your father or mother, it is because of meiosis, how we will understand. But to understand meiosis better, there are a few things we need to understand before. पहले कुछ चीज़ें जाननी है जिसका नाम है homologous chromosomes. ये homologous chromosomes क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट? उन 23 टाइप्स में से कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप और साइज आपस में सिमिलर होता है. तो वो क्रोमोसोम्स जिनका शेप और साइज आपस में सिमिलर है उनको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अगर रेप्लिकेशन होगा तो देखो ये एक्स शेप के 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे. ये दोनों कलर्स आपस में होमोलोगस कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का शेप और साइज सेम है. अब यहाँ पे एक टर्म आता है सिस्टर क्रोमैटिड्स. बहुत लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स को होमोलोगस क्रोमोसोम से कंफ्यूज कर जाते हैं. देखो एक ही एक्स शेप के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, एक ही एक्स के अंदर जो 2 लाइंस हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? 2 अलग अलग क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों अलग अलग है, बाहर है पर देखने में सिमिलर है. तो सिस्टर क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के अंदर होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं देखने में, शेप एंड साइज में. ओके, मूविंग अहेड, द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू नो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. इन दिस डायग्राम इफ यू कैन सी दिस पर्पल कलर एंड ब्लू कलर, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बिकॉज their शेप एंड साइज आर सिमिलर. ओके, these similar homologous chromosomes most of the time come close together.
देखो ये लोग दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर. व्हेन दे कम टुगेदर, इनके आर्म्स आपस में कुछ जीन्स एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक टू पीपल कम एंड सिट क्लोज टुगेदर एंड देन दे एक्सचेंज सम ऑफ देयर स्टेशनरी. तो वैसे ही दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं एंड पास आके वो लोग अपने अपने आर्म्स में से कुछ कुछ जीन्स एक्सचेंज करते हैं. बिकॉज ऑफ विच द न्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज अर्लियर. अभी क्या हो रहा है देखो, ब्लू का थोड़ा पार्ट पर्पल के पास आ गया, पर्पल का थोड़ा पार्ट ब्लू के पास चला गया. These genes और these chromosomes are called recombinant chromosome. Recombine होके बना है इसीलिए recombinant chromosome. Property important क्या है? This is different from the earlier homologous chromosome. ठीक है, यहाँ पे थोड़े changes आ गए हैं, थोड़े variation आ गए हैं. इस चीज़ को important point को ध्यान रखना है. Recombination भी बोलते हैं इसको या फिर crossing over भी बोलते हैं. दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं और थोड़ा मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं. वी आर नाउ रेडी टू स्टडी अबाउट मियोसिस इन डिटेल. मियोसिस ब्रीफली क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. मियोसिस के प्रोसेस में इट स्टार्ट्स विथ हैप्लॉइड सेल्स. इसीलिए देखो ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे पेयर्स नहीं बनाए हुए हैं. ठीक है, सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ हैप्लॉइड सेल. इस हैप्लॉइड सेल्स में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करेंगे. मतलब आप देखो यहाँ पे ये जो ऊपर के दो हैं ये थोड़े छोटे हैं और ये जो नीचे के दो हैं ये थोड़े बड़े हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये नीचे वाले दो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी रेप्लिकेशन. जैसे माइटोसिस में हुआ था, पहले रेप्लिकेशन होगा और मटेरियल डबल हो जाएगा, वैसे यहाँ पे क्या हुआ देखो, ग्रीन वाला या फिर ब्लू भी कह सकते हैं इसको. This green color chromosome becomes double, the other green also becomes double. The first purple becomes double, the second purple also becomes double. Then what is happening, if you can see the diagram, this process that we studied just now is called crossing over या recombination. तो क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पास पास आ रहे हैं और थोड़े मटेरियल्स एक्सचेंज कर रहे हैं. एक्सचेंज करने के बाद ये डिवाइड करेंगे ऐसे कि ये ऊपर के दो क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे अलग सेल में चले गए, ये नीचे के दो क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे अलग सेल में चले गए. तो क्या हुआ, हमने एक हैप्लॉइड सेल से शुरू किया, उसने रेप्लिकेशन किया, क्रॉसिंग ओवर किया, उसके बाद डिवाइड हो करके आपको दो सेल्स दिए. ठीक है, 2 स्पर्म्स यू हैव हियर. फ्रॉम हियर यू देन मूव अहेड. अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो और उसके बाद आपको क्या मिलता है, ये देखो, ये एक सेल के अंदर 4 सिंगल स्ट्रैंड्स हैं. 4 सिंगल स्ट्रैंड्स है, मतलब इसको टूट के सिंगल सिंगल बनाना है. आपको मियोसिस में हैप्लॉइड से शुरू करना है, एंड भी हैप्लॉइड में करना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डबल को अलग करके सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा. सिमिलरली फॉर द अदर सेल, ये डबल को अलग करके सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. एक हैप्लॉइड सेल से शुरू हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, 2 सेल्स मिले और उन 2 सेल्स ने फिर से रेप्लिकेशन किया, 4 सेल्स मिले. मतलब मियोसिस में एक हैप्लॉइड सेल से पूरे प्रोसेस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. अनलाइक माइटोसिस जिसमें 2 ही सेल्स मिलते थे, यहाँ पे आपको 4 सेल मिलते हैं. अब इस केस में आप देखो 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं. पहले केस में यहाँ से टूट के 2 बन रहा है और सेकेंड केस में यहाँ से टूट के और 2 सेल्स बन रहे हैं. 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है. इसका मतलब ये जो पूरा फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे पहला सेल डिवीजन हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड मियोसिस 1. और ये जो सेकेंड स्टेज है जहाँ पे फिर से सेल डिवीजन हो रहा है, इसको कहते हैं मियोसिस 2. सो मियोसिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट इज मियोसिस 1 जिसमें पहला सेल डिवीजन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड द सेकेंड इज मियोसिस 2 जिसमें फिर से सेल डिवीजन होता है. लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन वेरी वेरी डिटेल. आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. अगर आप ब्रीफली प्रोसेस को समझ पा रहे हो, खाली फ्लो समझ लोगे तो उतना भी काफ़ी है आपके लिए. मूविंग अहेड, let us understand the diagrams which are given in your textbook.
तो मियोसिस 1 प्रोसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू माइटोसिस. जैसे माइटोसिस में 4 फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वैसे ही यहाँ पे भी होंगे. तो क्या होगा, मियोसिस 1 का पहला प्रोसेस है ये प्रोफेज, जिसमें देखो डीकंडेंसेशन होगा और फिर क्रोमोसोम्स जो हैं अपना शेप लेना जस्ट शुरू कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज प्रोफेज 1. और प्रोफेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है विच यू कैन सी हियर इज क्रॉसिंग ओवर. मियोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस इन ओनली दिस वे कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में द सेकेंड फेज दैट कम्स इज कॉल्ड मेटाफेज 1. देखो सेम चीज हो रहा है ना, इस बार क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं, बट डिफरेंस यही है कि पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक करते थे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग जाएंगे. ठीक है, सिर्फ वही डिफरेंस है. तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ गए, दिस इज मेटाफेज 1. यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड यू विल गेट एनाफेज इन विच यू कैन सी द क्रोमोसोम्स आर गोइंग इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेल. एंड द लास्ट फेज इज कॉल्ड टीलोफेज, जिसमें आपको 2 अलग अलग सेल्स मिलेंगे. तो मियोसिस 1 का 4 फेज सेम रिपीट होता है, प्रोफेज 1 विथ क्रॉसिंग ओवर, देन कम्स मेटाफेज, देन कम्स एनाफेज एंड द लास्ट इज टीलोफेज. तो यहाँ पे टीलोफेज में आपको 2 सेल्स मिले, बट ये 2 सेल्स अभी तक हैप्लॉइड नहीं है, ये डिप्लॉइड है. आपको इनको हैप्लॉइड बनाना है, मतलब फिर से डिविजन करना पड़ेगा. वो डिविजन कहाँ होगा, वो डिविजन होगा मियोसिस 2 में. तो क्या हो रहा है, हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 सेल्स से जो कि अभी डिप्लॉइड है. अब ये 2 सेल्स में फिर से प्रोफेज 1 होगा, डिवीजन की तैयारी शुरू होगी, सेल में जो जो चेंजेस होने हैं वो चेंजेस होंगे, एंड अगेन द स्पिंडल फाइबर्स विल कम एंड द सेल्स विल, द क्रोमोसोम्स विल अरेंज देम इन अ सिंगल लाइन. दिस विल बी कॉल्ड मेटाफेज 2. फिर मेटाफेज 2 से आप आगे बढ़ोगे, एक मेटाफेज, अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग अलग जा रहे हैं और इस वाले सेल से क्रोमोसोम्स अलग अलग जा रहे हैं. दिस फेज इज कॉल्ड एनाफेज. तो यहाँ पे जो चीज़ माइटोसिस में सिंगल सेल्स के लिए हो रहा था, यहाँ पे वही चीज़ 2 सेल्स के लिए हो रहा है. ठीक है, एंड फ्रॉम एनाफेज द लास्ट फेज विल बी, जहाँ पे ये पूरा टूट के आपको 2 सेल देगा और ये पूरा टूट के आपको 2 सेल देगा, विच इज कॉल्ड टीलोफेज 2. So the same process of mitosis is exactly repeated in meiosis 2 और meiosis 2 में crossing over नहीं होता है. This was the entire crux of meiosis that we can summarize as meiosis is a process in which one haploid cell ultimately gives you 4 haploid cells. कैसे कि process starts with meiosis 1. meiosis 1 के अंदर 4 phases हैं एंड ये फेज शुरू कैसे होते हैं, एक स्पर्म सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम है. ठीक है, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है. इसके साथ में 4 प्रोसेसेस होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग घुसेंगे मियोसिस 2. मियोसिस 2 में आपके पास में 2 स्पर्म सेल्स रहेंगे. ठीक है, अब ये 2 स्पर्म सेल्स फिर ब्रेक होंगे जस्ट लाइक माइटोसिस, मतलब ऐसा लगेगा 2 माइटोसिस साथ साथ चल रहा है और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको 4 स्पर्म सेल्स मिलेंगे और चारों में 23 क्रोमोसोम्स होंगे. तो एक सेल से शुरू किया 23 क्रोमोसोम्स वाले और वो टूट के आपको 4 सेल्स देंगे और उन चारों में 23 क्रोमोसोम्स ईच होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हैप्लॉइड सेल यू गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स बाय गोइंग थ्रू मियोसिस 1 जिसमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होगा, फॉलोड बाय मियोसिस 2 जिसमें माइटोसिस जैसा सेल डिवीजन होगा. This is the entire crux of meiosis and it is because of this process of recombination. आप देखो ये चारों जो नए स्पर्म्स बने हैं, ये चारों के क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग हैं. अगर आप देखो इनका कलर कोड तो इसमें से कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है. It is because of this reason that from a single father or a mother जितने भी बच्चे बॉर्न होते हैं वो सब देखने में अलग अलग होते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो जितने भी बच्चे पैदा होते वो सारे देखने में सेम टू सेम लगते. एंड दैट इज हाउ सेल डिविजन इज इंश्योरिंग वैरायटी इन द यूनिवर्स. इट इज इंश्योरिंग सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. With this we come to the end of the session, but before we end, one question that I would like you to answer in the comment box when you see this video is what is that you will remember always from today's session.
इसको आपको क्रक्स में समझना है. अगेन आई विल टेल यू, इसके बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है. But what is the important thing that you are taking away from here? Please mention in the comment box. It will help me understand better. Thank you so much everyone for engaging in this beautiful session. Have a nice day. Take care.